السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق رضا اشرفی، پریسیڈنٹ آف اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن، میں آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے لائیو آیا ہوں کہ کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ کچھ وہابی ہے، عاوید صدیقی نام ہے جس کا، ایک وہابی ہے، اور ایک صابر انصاری کر کے، اور بھی کچھ اس کے ساتھی ہیں، افو خان ہے، ندیم برہان پوری ہے، ندیم الوی ہے، کفایت اللہ ہے، اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ والے ہیں، مخی باوا کر کے ایک ہے۔ انہوں نے میرا فوٹو غلط استعمال کیا، میرا نمبر غلط استعمال کیا، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے فوٹو کو انہوں نے غلط طریقے سے ایڈٹ کیا، اس پر گالیاں لکھی اور میرا نمبر وہاں پر ڈال دیا۔ حضور تاج الشریعہ کی فوٹو پر گندی گندی گالیاں لکھی، میرا نمبر، میرا فوٹو وہاں پر ڈال دیا، اور اس کو سوشل میڈیا پر عام کر دیا، فیس بک پر عام کیا، یوٹیوب پر عام کیا، اور واٹس ایپ پر سب کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں 3-4 مہینے سے مجھے ہمارے سنی بھائیوں کے فون آ رہے ہیں، اور میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، میں ایک سنی ہوں، کبھی سنی کسی اپنے سنی عالم کو گالی نہیں دے گا، تو میں کیوں تاج الشریعہ کو گالی دوں گا؟ لیکن ہمارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھے ماں بہن کی بہت گالیاں دے رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جو ہمارے عالم ہیں، ہمارے عالم بھی جب ہم کو فون کر رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں نے نہیں بنایا ہے، پھر بھی وہ میرے اوپر مطلب الزام لگا رہے، نہیں تم نہیں بنایا ہے، تم نہیں بنایا ہے۔ ابھی کچھ اڑیسہ کے کوئی عالم تھے جو مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ چلتا، وہاں کے کچھ علماء نے مجھے فون کیا، میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کسی وہابی کا کام ہے۔ تو بولتے ہیں کہ تم یہاں پر آ جاؤ، ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ بولا بھائی میں جاب والا بندہ ہوں، میں وہاں پر نہیں آ سکتا۔ تو بولتے پھر تو پکا ہو گیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ پھر میرا دماغ خراب ہوا، میرا غصہ آیا، پھر میں نے بولا یار آپ لوگ جہالت والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں بنایا، پھر بھی آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ لیکن وہاں کے ایک عالم نے اتنی مجھے گندی گندی گالیاں دی، ماں بہن کی گالیاں دی، مجھے دیوبندی تک کہہ دیا۔ تو آج بہت ہی مجھے دکھ ہو رہا ہے، بہت ہی درد کے ساتھ میری آنکھوں میں آنسو ہی آنے والے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے میں دین و سنیت کا کام بند کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز جو ٹرو اسلام ایپ ہے جو ہم بنا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن جو ہے، جلد ہی 1-2 دن میں کسی ہمارے سنی بھائی کے حوالے اس کو کر دوں گا۔ میرا پھر نہ اس فاؤنڈیشن سے کوئی لینا دینا ہوگا، اور نہ میرا پھر ٹرو اسلام اپلیکیشن سے کوئی لینا دینا ہوگا۔ میں ہمارے کسی سنی بھائی کو یہ کام سونپنے والا ہوں۔ تو میرے جو نمبر عوام میں موجود ہے 7977210361، 9892708816، اور 7710809266، صرف کل کے دن ہی میں اس کو آن رکھوں گا۔ تو ہمارے جو کوئی سنی بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن چلانا چاہتے ہیں، ٹرو اسلام ایپ کا کام کرنا چاہتے ہیں آگے، کیونکہ یہ تو سنیت کا کام ہے، تو جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ میں اس کو فاؤنڈیشن کا بھی پورا ذمہ داری دے دیتا ہوں، اور اس کو اپلیکیشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تو بس ایک دن میں اپنے نمبر چالو رکھوں گا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن چینل بھی میں بند کر دوں گا، اور فیس بک پہ جو میرا کام ہے میں وہ بھی بند کر دوں گا۔ واٹس ایپ پر جو ہے وہ تو نمبر ہی ڈیلیٹ کر دوں گا، واٹس ایپ چلے گا ہی نہیں۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اگر میری طرف سے آپ لوگوں کا دل دکھا ہو تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि हमारे मुसलमान भाई सब इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, नदीम भाई ने सेंड किया था ग्रुप में। तो मैंने वीडियो देखा, एक जो हमारे मुंबई के हैं फारूक रजा अशरफिया, वो जो लैपटॉप बाबा हैं हमारे, उनके चेले चपाटी हैं वो। बहरहाल हमसे कोई गर्ज नहीं है। बताना ये मकसद है मेरा कि आज से तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पहले, इसी के बीच में लगभग, मैं उनसे बात कर रहा था फ़ोन से। तो वो फारूक रजा जो हैं, उनका जो एक साजिश था अपना चैनल चलाने का, ये सिर्फ़ एक ही मकसद था, ना लोगों का इस्लाह करें, ये मकसद उनका नहीं था। बल्कि मकसद ये था जो अहले हदीस हजरात हैं और जो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में बुरा भला और लोगों को दिल में गलतफहमियाँ डालते थे और बरगलाते थे लोगों को। बहरहाल हमने भी बहुत बात किया उनसे, फारूक रजा से। हमको तो बहुत करीब से जानते हैं। कभी मैं उनके सामने, अभी मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है हमको देखे तो उनको हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे उम्मीद है कि ना होना चाहिए। तो उनसे मैं बात किया था बहुत ज़्यादा, तकरीबन 6-7 महीने तक मैं उनसे बात किया। मैं उनसे ये बोल के बात कर रहा था कि मुझे आप लोग का जो चैनल पे आप लोग जब बातचीत कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हमसे बार बार पूछते थे कि आप कौन सा मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं उस टाइम बोलता था कि देखिए, मैं बरेली था, लेकिन अभी मैं तहकीक कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो वो बेचारे बहुत कोशिश किए हमको तब्दील करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाकामयाब रहे। तो वो हमको, मतलब तकरीबन उनका ये सोच था कि हमको ऐसा बात बताए हैं, ताकि मैं आप लोग सामने बताना चाहता हूँ वो हमको क्या क्या बात बताए थे अहले हदीसों के बारे में। सबसे पहला तो उन्होंने हमको जो बात बोला, फारूक रजा जो हैं, कि देखो, ये जो आज दुनिया में पनप रहे हैं और हमारे कमी की वजह से, तो इनके लिए हम जिहाद करते हैं जवान से, हाथ से। बोला ठीक है, हमसे जो चाहिएगा हम आपका साथ देंगे। तो इन्होंने सबसे पहला बात जो हमसे कहा था कि आप मक्का में रहते हैं, तो आप वहाँ का कुछ ऐसा गलत सलत फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह करके हमको भेजें। मैं बोला भाई, हम यहाँ कमाने आए, मरने नहीं आए। यहाँ तो देख लेगा कोई तो हमको जेल में डाल देगा। तो नहीं, छुप छुपा के अगर कोई आपको कुछ गलत सलत, जैसे फारूक रिजवी साहब जो चलाते हैं लैपटॉप पे, तो वैसा ही अगर कोई वीडियो मिले या फ़ोटो मिले तो हमारे पास सेंड कर दो, ताकि मैं दिखा के आवामों को बताऊं कि ये देखो, ये मक्का में, सऊदी अरब में कैसे करते हैं। पहले इनका हमारे पास पहले इन्होंने जो हमको दावत दिया अपना दीन का, ये दिया था, ये इनका दावत था हमारे पास दीन का। बहरहाल मैं नहीं किया ऐसा, मुझे क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे सऊदी अरब में रहता हूँ और मक्का में तकरीबन मुझे 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आवाम के अंदर क्या मैं गलतियाँ ढूंढूं? हर जगह पे जो आवाम हैं, कोई ना कोई उनके अंदर गलती तो होता ही है। लेकिन यहाँ के जो उलमाए जो दीन हैं, जो उलमाए कराम हैं, तो उनका मैं खुतबा सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उर्दू में ट्रांसलेशन भी होता है। तो खुतबा से तो पता नहीं चलता कि इनके अंदर कोई फ़िरकावारियत है। तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सुना, बहुत हर आदमी सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आते हैं यहाँ पे जुमा का नमाज़ पढ़ने, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो भी हैं, आके यहाँ अपना खुतबा सुनते हैं। तो उनको एक हेडफोन दिया जाता है ताकि वो अपने मोबाइल में लगाकर
उर्दू ट्रांसलेशन या बंगला या जो कंट्री का जो जवान का है यहाँ पे तर्जमा होता है वो सुनते हैं। तो मुझे तो आवाम का जो गलतियाँ हैं वो बता के थोड़ी ना दिन बदनाम होता है। दिन तो बदनाम उलमा लोगों से होता है, जो अपने आप को आलिम, मुफ्ती, पता ना बड़े बड़े अल्लामा फलाना क्या क्या लक़ब लगाते हैं। तो जो दीन और मजहब उनसे बदनाम होता है। तो ये हमसे मांगते थे वीडियो फ़ोटो, मैं नहीं देता था। बहरहाल बहुत सारे हमसे बात की, आप हमसे बड़े अहले हदीस बन के बात करो। कभी मजाक में कहेंगे कि अच्छा चलो आज तुम देवबंदी बन जाओ, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं बोलता था भाई ये सब करने से आपको क्या मिलेगा। तो फिर कभी बोलेंगे अहले हदीस बन जाओ, ऐसा सवाल करो हमसे, मैं जवाब दूँ और नेट पे छोड़ूँ ताकि लोगों का इस्लाह हो, लोग समझेंगे। मैं बोला ये सब तो धोखा है ना। अगर आपको बात करना है तो आप किसी यानी अहले हदीस से बात करें या किसी देवबंदी से बात करें, हमसे बात करके आपको क्या मिलेगा। फिर ऐसा बहुत दिन हम इनसे कोई मसला मसाइल पूछते थे, लेकिन मैं इनसे मुतमईन नहीं होता था, क्योंकि इनके उलमा जो लोग हैं, तकरीबन जितने भी उलमा इकराम इनके, तो उनसे अगर 10 उलमा का तकरीर आप सुनेंगे तो दसों तकरीर से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बात सुनने को मिलेगा। जैसे कि सजदा का ही ले लो, तो कोई उलमा बोलता है कि सजदा करना जवाज है, हराम नहीं है। कोई बोलता है हराम है, कोई बोलता है कि इसमें उतना बड़ा गुनाह नहीं है। तो कोई अल्लाह समझ के थोड़ी ना सजदा आदमी करता है, तो चूमने जाता है, ताजिमन सजदा है। तो ताजिमन सजदा करने का जवाज है इस्लाम में। लेकिन जब हदीस में देखो तो अलग ही बात है। हदीस में जो एक सहाबी रसूल थे, जो अल्लाह के रसूल को सजदा किए, तो थोड़े अल्लाह समझ के थोड़ी ना किए थे उनको सजदा, वो भी तो ताजिमन सजदा था। तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया और वहाँ पे बोला कि जब वो सहाबी जब सजदा किए तो उन्होंने कहा कि तो क्या मैं अगर दुनिया से चला जाऊँगा तो क्या तुम हमारे कब्र पे जाके सजदा करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसा ना करो, अगर सजदा इस्लाम में जायज़ होता तो औरतों को जायज़ होता को अपने शौहर को सजदा करें। अब ये हदीस इनके सामने बिल्कुल वाज़े है, पता नहीं पढ़ते हैं जानबूझ छुपाते हैं। दो ही बात है, या तो पढ़े नहीं है, तो पढ़े तो जानबूझ के छुपाते हैं। फिर ये बोलते हैं नहीं ताजिमन सजदा का जवाज है, ताजिमन सजदा करने से उतना बड़ा कोई हर्ज नहीं है। कोई बोलता है हराम है, आला हज़रत लिखते हैं कि हराम है, आला हज़रत लिखते हैं कि मज़ारों को नहीं जाना चाहिए। इनके मौलवियों से सुनो तो कहते हैं कि इनके मौलवी सुनो तो औरत को जाने का वो तरीका बताते हैं कि ऐसे कोई औरत जाए, वैसे कोई औरत जाए, उसका जाने का यानी तरतीब बताते हैं कि इस तरतीब से औरत जा सकती है। यार ये तो आदमी कैसे मुतमईन होगा, किसी भी एक बात से आदमी मुतमईन होता है ना। बहरहाल आज ये जो मेरा हुलिया है, ये मुझे पता है कि हुलिया ये आज हमारा जो पहनावा हो रहा है, ये देख के तुरंत बोलेंगे कि ये दुपट्टे वाली आपा हैं। क्या कि गालियाँ तो इनका मुकद्दर है। भाई हम सऊदी अरब में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ का लिबास में क्या खराबी है। अल्लाह के रसूल ने तो कहा है कि तुम सादा लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल खुद हुक्म दिए हैं कि सादा लिबास पहनो। तो ऐसे चालू करो यार, गर्म हो रहा है। सादा लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद था सादा लिबास, और तो यहाँ का आदमी पहनता है, हम भी पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है कि कमेंट में क्या आने वाला है कि बाई हैं तो अपा हैं तो दुपट्टा लगाए हैं। मेरे भाई ये सुन्नत और दिन समझ के हमने नहीं लगाया। मुझे पता है आप लोग क्या बोलेंगे। ये एक यहाँ का एक कल्चर है, और यहाँ ये अपना दिन समझ के नहीं लगाते हैं कि लिबास है अपना पहनते हैं। हम भी पहन रहे हैं। बहरहाल तो ये फ़ारूक जो रजा हैं, फ़ारूक रजा अशरफी, आज भी इनका वीडियो देखा। बेचारे ऐसे लग रहे हैं कि इनको आदमी को लकवा नहीं मार देता है, किसी इंसान को लकवा मार देता है एकदम जैसे या लकवा मार दिया हो, या कोई भारी मुसीबत या चोरी के अंजाम में फंस गए हो, या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा कानूनी कार्रवाई हो गया। एकदम मुँह
ऐसा एकदम सुखा के बात कर रहे हैं कि भाइयों मेरे ऊपर ये हो गया है, तो वहाबियों ने हमको बदनाम कर दिया है। मेरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? तुम तो खुद पोस्ट अपना लिखते हो हम कि देखो ये वहाबी ने अपने पोस्ट पे ऐसे चढ़ा के लिखते हो ताकि लोग उनको गाली दे, अपने आवामों को भड़काते हो। हाँ, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं। मुझे पता है कि आप हमको देखेंगे तो आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। मेरे भाई तुम 1.5 साल मैं यही दिन का इंतज़ार कर रहा था कि ताकि मुझे मौका मिले, तो मैं इसी इंतज़ार में था, इसी मौके के इंतज़ार में था, और अल्लाह तबारक ताला ने वो पूरा कर दिया। तो तुम कितने झूठ बोलते हो यार। तुमने खुद कहा है कि हम उनके खिलाफ हम पोस्ट लिखते हैं ताकि वो बदनाम हो, हमारे आवाम जो है उनकी आंखें खुल जाए, आंखों का। तो झूठ बोल बोल के अपने आवाम की आंखों का पर्दा खोलते हो। सच्चाई क्या है यार? अहले हदीस का कसूर क्या है? वो तो कुरान हदीस का दावत देते हैं। तुम उनके उलमा का जो गलतियाँ निकालते हो तो साफ कहते हैं कि भाई हम हर उलमा का हर बात नहीं मानते हैं। हमको जो कुरान से मिलता है वो मान लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको हम छोड़ देते हैं। तो फिर उनके उलमा, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो तुम बोलोगे कि मैं अहले हदीस हूँ, मुझे पता है भाई। मैं पहले बरेली था, मैं बरेली अभी भी हमारे पूरे घर वाले दादा के, हमारे जो जहाँ दादी हमारा जो दादा घर है, जो हम जहाँ नाना घर है, सब अभी बरेली हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तब्दील हो गया हूँ। यही तुम्हारा बदमाशी देखकर, क्योंकि तुम लोग एक बात बोलते नहीं हो, कभी कुछ बोलोगे कभी कुछ बोलोगे। उसके पास जाओ तो वो गाली दे के भगा देगा। उलमा से पूछो कुछ फ़ोन करके तो तुरंत वहाबी का फतवा लगा देगा। मेरे भाई गाली देने से किसी को इस्लाह होता है? आप लोगों तो अपना मजहबी गाली बना लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम है, उन्होंने कहा कि अपने इखलाक अच्छा करो, ज़बान को काबू रखो, और तुम लोग बोलते हो गाली देना सुन्नत है, फ़र्ज है, वाजिब है। तो ये कैसा मजहब है? अगर कोई आदमी गुमराह है तो आप उसको इस्लाह करें। इस्लाह कैसे हो? गाली दे के इस्लाह होता है कि आप उसको दलाइल दें, अल्लाह उसके रसूल का बात बताएं। मसलन मैं एक सवाल करता हूँ, मैं कितने आलिम के पास में जब मैं बरेली था तो फ़ोन करता था कि भाई हमसे कोई अहले हदीस भाई मिलते थे तो बोलते थे कि भाई तकलीद करना कहीं नहीं लिखा है, जो हम तकलीद हैं, मुकल्लिद हैं। तो अल्लाह ने तो मना किया है कुरान में, अल्लाह के रसूल ने मना किए हैं फ़िरके न बनाओ, अल्लाह ने मना किया फ़िरके न बनाओ, और तुम लोग तकलीद करते हो। तो ये तकलीद करना पता करो कहीं नहीं लिखा है, किसी इमाम ने नहीं कहा। मैं फ़ोन लगाता था उलमा लोगों के पास में, वो फ़ारूक रिजवी जो लैपटॉप बाबा है, उससे मैं कितने बार बात किया, लेकिन यही जो ये फ़ारूक रजा जो अशरफिया है, पता नहीं लानती, पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, इसी ने फ़ोन करके वो फ़ारूक रजा का बोल दिया कि ये अंदर ही ये अहले हदीस है। बाद में वो भी लैपटॉप वाला बाबा हमसे बात नहीं करता है। तो मैं फ़ोन लगा के पूछा तो हमको जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है तकलीद करना चाहिए, देखो ये इमाम ने लिखा है, या अल्लाह के रसूल का हुक्म है, या कुरान में कोई दलाइल है। इन्होंने क्या किया कि जवाब देने के उलट इन्होंने बस फतवा लगाना चालू कर दिया। अरे मुझे पता है तुम वहाँ पे गए हो, गुमराह हो जाओगे, तो वहाँ का खाना खाओगे तो हराम का खाओगे, तो वहाँ जो खाता है उसी का हो जाता है। अरे यार ये कौन सा दलील है? आदमी आपसे सवाल कर रहा है कि भाई हमको ये चीज़ का आप हमको बताइए कि ये चीज़ कहाँ लिखा है, हमको जानना है। तो आप ऐसा फतवा लगा देंगे वहाबी का और पता ना क्या क्या। फिर हमने कहा वहाबी किसको बोलते हैं, तो वहाब पता चला कि अल्लाह का नाम है, इन्नका अंतल वहाब, जो कुरान करीम में सूरह इमरान में आया है। तो ये जो फ़ारूक रजा जो है, इससे मैं बोला यार वहाब तो अल्लाह का नाम है, तुम लोग वहाबी भी करते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो था ना जो अब्दुल वहाब। तो मैं बोला वो अब्द था ना, वहाब तो नहीं था। उसका पूरा नाम भी अहले हदीस बताते हैं, उसका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, और तुम खाली अब्दुल वहाब वहाबी कहते हो। तो हमने इससे ये भी पूछा तो बोल रहा है कि जो मोहम्मद नाम है वो हमारे नज़दीक बहुत मोहतरम है। मैं बोला आपके नज़दीक मोहम्मद नाम बहुत मोहतरम है और अल्लाह का नाम आपके नज़दीक मोहतरम नहीं है? यानी अल्लाह के नाम के आगे जो मर्जी वो लगा दो आप लोग, अल्लाह के नाम से जो मर्जी वो कहो, लेकिन अल्लाह के रसूल के नाम
تعظیم ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلت میں بڑے اللہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یار. ان کو رسول اللہ ہی نے بنایا نا. ان کو رسول اگر کسی نے نبی بنایا یا اتنا عزت اور فضیلت دیا تو ان کا خود کا تھوڑی نہ ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں ان کو محمد یا رسول یا نبی بنا کر بھیجے ہیں. تو یہ بول رہا ہے یہ فاروق رضا، یہ چیلا، یہ جو اللہ جانے ابھی رو رہا ہے بیچارہ. مجھے بہت ترس آ رہا ہے تم کو دیکھ کے میرے بھائی. تم ابھی سے بھی اچھا کام کرو، اللہ تم کو بخش دے. تم نے جتنا بدنام کیا ہے یعنی وہابی بول کر اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو جتنا تم نے جھوٹے تہمت لگائے ہیں، گالی دیے ہیں، میرے بھائی توبہ کر لو. یہ دین ایسا نہیں ہوتا ہے، دین ایسا نہیں پھیلتا ہے. دین قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کے مطابق دین پھیلتا ہے. تم نے جو گالی دینے کا جو دکان کھول رکھا ہے، تم سچ بتانا یار. اگر میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمہارے پاس پہنچے. تم کتنے غلط بات سکھاتے تھے کہ یار تم ایسا بولو نا، ایسا تم اہل حدیث کے خلاف ایسا بول کے ہم سے بات کرو نا. میرے بھائی یہ کرنے سے تم کو کیا ملے گا؟ تم کو مرنا نہیں ہے. تم اللہ کے پاس تم کو جواب نہیں دینا ہے فاروق رضا. ہاں ابھی تمہارے پر مصیبت آیا تو پھر سے بھی تم الزام لگا رہے ہو کہ ہم کو وہابی نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے ہمارے خلاف ہمارے نمبر غلط استعمال کر کے ایسا انہوں نے کیا. کتنے جھوٹ بول رہے میرے بھائی. یہ سب تو تم خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہو. اپنے بزرگوں کے آگے گالی لکھ دو گے، دوسرے کا نام لکھ کے اور پوسٹ کرو گے تاکہ تمہارا عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو. تم کتنا جھوٹ بولتے ہو یار تم کو یہ کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ ہاں اپو خان کا نام لیے، میں ان سے بھی کتنے بار بات کیا، میں بہت کوشش کیا ان کو آزمانے کے لیے. وہ تو فالتو بات وہ کرتا ہی نہیں ہے. اس کا تو ایک مشن ہے کہ اپنا لوگوں کو جو غلط ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے. میں بہت میرے بھائی فاروق رضا، میں کتنے بار اپو خان سے بات کیا ہوں. میں دیکھا ہوں کہ وہ غلط بات نہیں کرتا ہے. وہ فالتو بات کرو گے تو فون کاٹ دیتا ہے اور جواب بھی نہیں دیتا ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ ہمارے جو ہم بریلی جو ہیں، اب میں نہیں ہوں تھا، تو جو ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہے غلاجت، وہ دنیا کو بتاتا ہے. اس کا یہی غلطی ہے. اور ندیم کو تم نام لیا، ندیم اس کو ایک بھی ریکارڈنگ تم بھیج دو گالی دیتا ہے کسی کو، میں سب کا سنتا ہوں میرے بھائی. گالی دینے کا دکان تو آپ لوگوں نے کھول رکھا ہے. آپ کے کتنے علماء کے پاس میں فون لگاتا ہوں، اور جب میں یہ سوال کرتا ہوں اہل حدیث والے تو گالی دینے لگتے ہیں، بولتے ہیں کہ تم وہابی ہو تو نجدی ہو تو حرام کا اولاد ہو، تو پتہ نہ تمہاری ماں کیسے پیدا کیا. یہ کون سا جواب ہے بھائی؟ یہ کوئی جواب ہے؟ ایسے اصلاح ہوتی ہے لوگوں کا؟ کون ایسا صحابی یا کون ایسا امام جو تھے کہ گالی دینے کا طریقہ اپنائے تھے لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے؟ میرے بھائی تم لوگوں نے کون سا دکان کھول رکھا؟ اور تم ہم سے ایک بار بولا، میں جب تم سے میں بات کیا کہ وہابی کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا نام پورا بتاؤ. ان کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا. تو تم اپنے، اگر تمہارے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو تم نے کیا کہا تھا کہ محمد جو نام ہے ہمارے نزدیک بہت معتبر ہے. تو ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے. تو تم کہہ رہے ہو فاروق رضا کہ یعنی ہم کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ تم پتہ نہیں ہمارے میں کہ ہوگی یا نہیں. میں بولا یار میں یہ کون سا بات ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی میں فضیلت پوچھا ہوں تم سے. تو نہیں جو اللہ کا فضیلت مطلب زیادہ کر دے وہ وہاں بھی ہو جاتا ہے، ہاں وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. تو تمہارے باتوں نے ہم کو بہت تکلیف دیا. اور تمہارے علماء کو جو بات ہے، جو میں کتنا ہی بولوں گا تو تم لوگ اپنے عوام کو ہی بتاؤ کہ یہ اہل حدیث ہے، کیونکہ یہ جو میرا لباس ہے تو اسے دیکھ کے تم لوگوں نے یہی لوگوں کو بتانا ہے کہ اہل حدیث ہے. لیکن یہ میں سامنے اس لیے آ رہا ہوں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے، میں دنیا میں اکیلے تھوڑی نہ ہوں، میرے بہت سے رشتہ دار ہیں، بہت میرا بھی، میں انات یتیم نہیں ہوں الحمدللہ.
तो सब इस वीडियो को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अहले हदीस हूँ, अहले हदीस हो गया हूँ और मैं बरेलवियत को तलाक दे दिया हूँ, क्योंकि ये लोग हलाले के हैं और हलाला वाला धर्म हमको नहीं चाहिए। मैं 3 तलाक दे दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तरतीब से। तो मैंने तरतीब नहीं, हम तरतीब से दिए हैं, इद्दत पूरा कर कर के। ठीक है, तो मेरे भाई हम जब हमको देखोगे ना, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुमको कुछ ना हो, क्योंकि तुम हमको बहुत अच्छा से जानते हो। तो एक आखिरी नसीहत आपके लिए है, नदीम भाई या अप्पू भाई या जो भी अहले हदीस के उलमा लोग हैं भाई, उनको गाली देना छोड़ दो। इनका तुम कसूर बताओ लोगों को। तुम थोड़ी थोड़ी वीडियो काट काट के नेट पे डालते हो, और तुमको पता नहीं कि हम सऊदी अरब में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नेट चलाने का बहुत अच्छा सुविधा है। तुम थोड़ा सा वीडियो डालते हो काट के, हम वो वीडियो ढूंढ कर हम पूरा देखते हैं। कोई सब बात तो होता नहीं है। तौसीफ रहमान साहब एक वीडियो डाले थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़ातिमा जो लेना है हमसे ले लो, मैं आखिर तुम्हारा कोई काम नहीं आऊँगा। तुमने कह दिया कि देखो ये अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई, तो मुस्नद अहमद में वो हदीस हमको मिल गया, मैं पढ़ा। हवाला चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ तकरीर करने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, फिर तुमने एक और वीडियो काट के डाला था डॉक्टर जाकिर नायक का, को देखो कि ये बोल रहे हैं कि नबी को मानना हराम है। अरे मेरे भाई, तुम लोग का अक्ल कहाँ गया है यार? जो आदमी दिन भर और रात भर लोगों को ये मनवा रहा है कि तुम अल्लाह के रसूल को मानो, तुम्हारे किताबों में ये है, तुम्हारे किताबों में ये है, कलमा पढ़वा रहा है तुम, यानी सब कुछ तुम्हारी नज़र से ओझल हो गया। बस वही एक चीज़ आ गया, उनका ज़बान का मिस्टेक था कि हम उनको बोलने में थोड़ा लड़खड़ा गए। मानना का हो गया मांगना, या मांगना का मानना हो गया। तुमने उतना सा काट कर दुनिया में फैला दी। कितने झूठ का सहारा लेते हो। लेकिन बहरहाल सब सुन समझ के यही हरकत से, ऐसा हरकत से लोग तुम्हारे अंदर से भाग रहे हैं। यही तुम्हारा हरकत जो है, यही लोगों को निकाल रहा है। क्योंकि यार हर आदमी बदअकल नहीं होता है ना। अल्लाह तबारक व तआला किसी को समझ भी देता है, और जो तुम्हारा हकीकत जान जाते हैं वो तुम्हें लात मार देते हैं, बाद में तुम उसके ऊपर फतवा लगा देते हो। तो वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अकल दिया था। तुम्हारे वीडियो देख देख के, तुम्हारे झूठ फरेब, तुम्हारा मक्कारी, तुम हमसे कितना झूठ बोलवाने की कोशिश किया, मैं नहीं बोला, इसलिए मुझे ज़्यादा तुम लोगों से नफरत हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक बात बताऊं, वहाबी हम लोग नहीं हैं, हम लोग कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह की निस्बत से वहाबी कहते हो तो हम हैं। अगर तुम ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की निस्बत से कहते हो, तो जिस शख्सियत के लिए तुम लोगों ने वहाबी का जो रचना रचा हुआ है हमारे मुल्कों में, तो मेरे भाई लोगों को क्यों नहीं बताते उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब था? उसका नाम तो मोहम्मद था, तो तुम लोग मोहम्मदी नहीं बोला। तुम अगर मोहम्मदी बोलते, लोग तुम्हें जूते मारते। इसी बात से तुमने हमसे नफरत किया था, और ये बात को मैंने बहुत अच्छी से तहकीक की है। और फिर यार अल्लाह से तौबा कर लो मेरे भाई, झूठ का सहारा लेना छोड़ दो। अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग हिदायत दे, और कुरान और सुन्नत का जो तबलीग है, जो दावत है, वो आम करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।